Hello everyone, welcome to Level Up. CUET UG examinations are going to start anytime soon in May. And now we have to gear up for the examination. Today, we are going to give you certain tips how to score the maximum marks. Can you score full marks in CUET UG history exam? Sounds very difficult, but it is quite possible. By focusing on certain core areas, by focusing on right practices, by focusing on proper demarcation of the subject, and by practicing time management, you can definitely score maximum marks in this particular subject. History CUET exam can be a really scoring subject considering the fact that it has a mixture of fact as well as conceptual terms, right? So it requires right kind of preparation to be able to take full utilization, full use of that practice, and you will be able to score maximum. There are certain strategies that you can follow to for the examination, right? Right. Right now, you don't have any specialization, so you have to study ancient, medieval, modern, all of three of them. But there are certain things that you can do. Focus on certain aspects there which are important from an exam perspective, right? For example, when we are dealing with subject, there are 3-4 things that are important. One is are the dates, right? There are at least 5-10 dates, important dates for each chapter, right? Which are very significant, which are central to the theme of the subject. For example, if you are dealing with Harappan civilization, okay, what are the important dates? What is the date of origin of early Harappan, mature Harappan, and late Harappan? These are 3 dates that you already remember, right? These are the significant dates. Most of the other dates in Harappan civilization will be largely will remain largely speculative in nature. So these are the 3 dates that you at least need to be very much sure about. The other set of dates that you need to remember is the discovery of that site, because if you read your history books for CUET UG, you will remember this, that it deals with 2 aspects. One is the actual history of that period, but also how that particular site or a particular civilization or culture came to be recognized during the modern time. So the discovery of that particular culture. So when we say discovery, so Harappa ke context mein you will say when was it discovered, right? So you have to remember the important date of the discovery of particular sites of Harappa, or basically the Harappan civilization, right? That's the first thing that you can do. Similarly, in the next few chapters, if you are dealing with, like in modern history, if you are dealing with 1857 revolt, you need to remember the certain important dates of different places. If you are dealing with Indian national movement, you must be remembering the dates for the NCM, for CDM, for Quit India movement, right? The Gandhian movement, when did he started all these Champaran, Kheda, Ahmedabad, all the chapters, go through the chapter once, identify the dates, okay, and on the basis of these dates, make a chart. It will help you in designating proper dates to each and every topic. Okay. In total, I guess there will be 55 to 60 dates in all your syllabus in 12 chapters. Okay. Considering the fact that if you even identify average 5 dates to one chapter, you have to make around 60 to 70 dates that you have to remember. Okay. And these dates are not very difficult to understand because the chronology is not confused. Right now, it's more straightforward chronology that you have to identify. Okay. Second thing is basically that you need to know are people. Okay. Who are the major figures that are associated with particular history? So if you are dealing again with like Harappan civilization may you don't have any kings or you don't have any queens. So that makes your work easy. Okay. You may have certain people called priest, king, etc., but they are not name of the ruler. Okay. So in the first chapter, Harappan, you don't have to worry about the name of the persons in history, but you have to remember the names of the people who discovered it.
ठीक है, तो यू मे हैव टू रिमेंबर नेम ऑफ दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, जॉन डेल्स, Mortimer Wheeler, ठीक है. 9 to 10 scholars have been mentioned in your CUET UG syllabus. Similarly, when you deal with say second chapter, when you are dealing with 600 to 6 BCE to 600 CE, you will remember the Mauryan dynasty. ठीक है, तो मौर्य में आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, right? You have to remember the important kings of the Magadha dynasty, Bimbisar, Ajatshatu, Mahapadmanand, Dhananand. देन वी हैव टू रिमेंबर द सातवाहंस, कुषाणस. तो उसमें एक दो किंग्स तो आपको पता होना चाहिए. कुषाण में आपको कनिष्क पता होना चाहिए, सातवाहन में आपको गौतमी पुत्र सतकर्णी पता होना चाहिए, राइट. गुप्ता में आपको प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त. दीज आर द रूलर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. जब आप मॉडर्न मेडिवल में आएंगे तो मुगल्स में आप लोगों को देयर आर 2-3 किंग्स दैट एवरीवन रिमेंबर्स, राइट. दैट द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर in medieval history, for example, you have a chapter on travelers. तो travelers में क्या है? travelers में आपको अल-बिरूनी है, कौन से टाइम पीरियड के हैं, राइट. इब्न बतूता कौन से टाइम पीरियड के हैं, कहाँ से आए हैं, विच इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट, राइट. देन वी हैव जो बर्नियर, बर्नियर कब आए, ठीक है, उनका टाइम पीरियड क्या है, राइट. सो पीपल दैट आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री. मॉडर्न में आप जाएंगे तो यू विल फाइंड मोर नेम्स, ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी इंडियन नेशनल लीडर्स जिनके आपको नाम याद करने की जरूरत है. तो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट पीपल, ठीक है, एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, तो फिगर्स यू नीड टू रिमेंबर. तो इसी तरीके से अराउंड आप लोग लक्ष्य रखिए कि रिमेंबर एटलीस्ट 50-60 फिगर नेम्स. ठीक है. अब ऐसा होगा कि कुछ चैप्टर्स में आपको ज्यादा नाम मिलेंगे, कुछ में आपको कम नाम मिलेंगे. समवेयर यू विल फाइंड 10 नेम्स, समवेयर यू मे फाइंड ओनली 5 नेम्स. तो 50-60 ऐसे आपको लोगों को हिस्टोरिकल नेम्स प्लस द डिस्कवरर्स, दोनों के हिस्टोरियोग्राफिकल नेम्स दोनों आपको याद करने हैं. ठीक है, तो एक चार्ट आप ऐसा बना लीजिए. आपने एक क्रोनोलॉजी का चार्ट बना लिया, दूसरा आप फिगर क्या कहते हैं पीपल्स का चार्ट बना लीजिए. ठीक है. थर्ड, इवेंट्स. ठीक है. व्हाट आर द मेजर इवेंट? सी, योर CUET UG सिलेबस डोंट एग्जैक्टली फोकस ऑन इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री. ठीक है. इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री आप लोगों को जनरली आपको मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री में. जब आप जाने लगेंगे तब आपको ज़्यादा आपको इसका एविडेंस मिलेगा. ठीक है. एंशिएंट वगैरह में दे आर फोकसिंग मोर ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री. ठीक है. दे आर फोकसिंग ऑन केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शनल. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे फोकस किया जा रहा है रादर देन स्पेसिफिक इवेंट. बट फिर भी इवेंट्स आपको मिलेंगे. जैसे जैसे आप हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे आपको इवेंट मिलते रहेंगे. तो बेटर होगा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करें इवेंट्स को लेस करना, बिकॉज मॉडर्न में आपको इवेंट ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव यू आर स्टडिंग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें कि असेंबली की कब स्टार्टिंग कब हुई थी, व्हेन इट वाज concluded, when it was put into implementation. ठीक है. फॉर 1857 में आप लोगों को बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे. इट इज होल 1857 का रिपोर्ट जो पूरा इवेंट सेंट्रिक है. ठीक है. इफ यू लुक एट द चैप्टर ऑन द परमानेंट सेटलमेंट एंड ऑल द काइंड ऑफ पेजेंट्री सिस्टम, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स में सारे मेजर एक्ट्स मिलेंगे. ठीक है. व्हाट वर देयर इंटरवेंशन, संथाल के साथ परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ, रेतवाड़ी कब इंट्रोड्यूस हुआ, महलवाड़ी कब इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. इसी तरीके से आप लोग तीसरा चार्ट बनाएंगे व्हेन यू आर डीलिंग विद ऑल द मेजर इवेंट्स. ठीक है. इवेंट्स की आपको एक लिस्ट बन जाएगी. मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होगा बिकॉज देर आर मोर डेंसर. ठीक है. कि ताकि आप लोग, वरना क्या होता है ना, आप एंशिएंट स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट में कम है बट यू विल टेक मोर टाइम. ठीक है. व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, आप लोग स्टार्टिंग में जो है एंशिएंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, फिर आप मॉडर्न तक पहुँचते पहुँचते आपका टाइम खत्म हो जाएगा. तो इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री अगर आप मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा इवेंट्स हैं. आप फिर एंशिएंट पे आएंगे तो आपको लगेगा कि इवेंट्स आर कंपेरेटिवली लेस. ठीक है. फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज टेक्स्ट एंड अदर सोर्सेज. जितने इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनके सबके नाम याद रखिए. ठीक है.
एंशियंट में यू विल रिमेंबर मोर नंबर ऑफ सोर्सेज बिकॉज आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। टेक्स्ट आपको जो है जैसे आप आगे जाएंगे, ठीक है, योर रेफरेंसेज विल बी मोर अपॉन सर्टेन रिकॉर्ड्स, ठीक है। आईन अकबरी या अकबरनामा मेडिवल में, या आपको जो है इब्न बतूता का रिहला मिलेगा, ठीक है, या बर्नियर के अकाउंट्स मिलेंगे, या अलबिरूनी का रेफरेंस का रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। आप जब भक्ति वाला चैप्टर करते हैं तो यू हैव रेफरेंसेस टू टेक्स्ट लाइक नलियरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। सो जब आप विजयनगर में जाएंगे तो यू विल फाइंड रेफरेंसेस टू पीपल लाइक निकोलो कॉन्ती, डोमिनिस पेक्स, सबके अकाउंट्स हैं, राइट। जब आप मॉडर्न में जाएंगे तो यू विल हैव गवर्नमेंट रिकॉर्ड, कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपको ये रेफरेंसेस मिलते हैं। तो मेजर जो टेक्स्ट हैं महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में यू विल फाइंड, इसमें शाहिद अमीन का रेफरेंस है, ही बेसिकली रिटर्न गांधी एज महात्मा, ठीक है। या फिर आपको क्या कहते हैं, गांधी की राइटिंग्स का रेफरेंस है। सो मेजर टेक्स्ट, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, तो वो आप लोग याद रखिएगा। प्लस अदर सोर्सेज, क्या क्या हमेशा याद रखिए कौन कौन से पीरियड के क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। हर पीरियड के में आपको लिखा हुआ है कि इंस्क्रिप्शन है, लिटरेरी है, आर्कियोलॉजिकल है, तो एक अकाउंट बना लीजिए। मॉडर्न में आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, मॉडर्न का आर्कियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। मेडिवल में भी आपको ऐसा आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं मिलेंगे। विजयनगर में आपको हो सकता है आपको एविडेंस मिले ऑफ द रूइंस ऑफ हम्पी, ठीक है, बट अदरवाइज मेडिवल में भी आपको ज्यादा आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं मिलेंगे। एंशिएंट में आर्कियोलॉजिकल सोर्स सिग्निफिकेंट है, इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है, न्यूमिज्मेटिक इंपॉर्टेंट है, टेक्सचुअल सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें रिमेंबर याद रखनी है कि कौन कौन से पीरियड के कौन कौन से सोर्स हैं, व्हाट आर द टेक्सचुअल सोर्सेज, व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, व्हाट आर द इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज, एपिग्राफिकल सोर्सेज, एंड व्हाट आर द न्यूमिज्मेटिक सोर्सेज। ये हर तरह के आपको सोर्स अगर याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, आप लोगों का ज्यादातर जो पोर्शन है हिस्ट्री का वो कवर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू डिस्कस फीचर्स। ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप हड़प्पन सिविलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी जगह से क्या मिला है, ठीक है। तो बेसिकली मोहनजोदाड़ो के क्या फीचर थे, सिटाडेल है, लोअर टाउन है, कि आप लोगों को कहते हैं डांसिंग लेडी मिल रही है, कि आपको प्रीस्ट किंग मिल रहे हैं, या ग्रेट बाथ मिल रहा है, ठीक है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फीचर्स हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन के क्या फीचर्स हैं, राइट। मैरिजेस कितने प्रकार के हैं, व्हाट आर डेफिनेशन, क्या होता है देव विवाह, क्या होता है आर्च विवाह, क्या होता है प्रजापत्य, क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट्स बेसिकली डेफिनेशन ऑफ त्रिधन। तो जितने भी मेजर डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स हैं, कई सारे आपको जो हैं इनमें बॉक्सेस में मिलता है कंटेंट, ठीक है, या आपको बोल्ड में लिखा हुआ इटैलिसाइज मिलता है। रीड विद दोस वर्ड्स, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, ठीक है। वो जो आइडेंटिफिकेशन है, फीचर्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों का अलग हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास 5 हेडिंग हो गई, एक आपकी डेट्स की हो गई, एक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पीपल हैं उनकी हो गई, इनके अंदर भी आपको सब कैटेगरीज मिलेंगी। तो इवेंचुअली 5 के साथ आपको 7-8 मेजर आपको सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा, 10 तक हो जाएंगे सब कैटेगराइजेशन, ठीक है। डेट्स, फिगर्स, इवेंट, टेक्स्ट, सोर्सेज एंड फीचर्स, इस तरह ये अगर आप लोग इस तरह से डेट ऑर्गेनाइज कर लेंगे, देन यू वोंट हैव टू फॉल इनटू दैट हैसल कि आप लोगों को बार बार जो है सोर्स किताबों को पढ़ के उसको रट्टा मारना है। बिकॉज अगर आपने एक बार नोट्स पढ़ लिया तो यू कैन लुक एट दीज योर सोर्सेज, आपने नोट देखे उसमें आपको इंस्टेंटली रेफरेंस मिल जाएगा, इंस्टेंटली आपको पॉइंट मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है, एंड दीज आर द थिंग जहाँ से हम लोग जो है अपना एग्जाम ये चीज़ें हमारे लिए तुरंत रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज की जा सकती है। इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, आपको चैप्टर पढ़ने नहीं, आपको चीज़ें याद करनी है। यू हैव टू रिमेंबर इट सो दैट यू कैन बेसिकली बी प्रिपेयर्ड फॉर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको जो है पैराग्राफ लिखने को नहीं आएगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन विच कैन पोटेंशियली बिकम एमसीक्यूज, ठीक है। तो अगर आप लोग पीवाईक्यूज वगैरह करते हैं, आप लोग जो है एमसीक्यूज करते हैं, तो उससे आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प होगा। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज हो सकते हैं उतना कीजिए। प्लस ये तरह का चार्ट बनाइए कि ताकि आपका कोई भी कंटेंट छूटे ना, किसी भी तरह से आप लोगों का कोई भी ऐसा पोटेंशियल एस्पेक्ट ना हो विच मिसेज आउट, ठीक है। एंड इट विल इंक्रीज योर चांसेस
to score higher and higher marks, right? So rather than start reading bulky books, I would rather say take the basic books, okay, and start making the charts, start making the tables, okay, start gathering information and placing them in your notebooks. That will help you to revise in a very better way in the last moment. Okay, hope these strategies will be helpful for you when you are dealing with the examination. Okay, and please go through the lectures, please go through the structure, please go through the PYQs for better information. It will help you in preparing for the exam in so much better. Thank you so much.